Assalamu alaikum. It's a pleasure to have all of you here today for this important discussion on women empowerment. This is Farheen Malik, the anchor for today's event on behalf of Aligarh Renaissance. Aligarh Renaissance always worked for empowerment of different communities. This organization was initiated in 2014 when a group of friends came together with the intention of giving back to society. A team of youth who have passion for social work and compassion toward the suffering of disadvantaged section of the society came together and formed Aligarh Renaissance. They were inspired by the thoughts and philosophy of Sir Syed Ahmed Khan, the founder of beloved Aligarh Muslim University. The mission of this organization is to make a positive impact in our community through social development, welfare, and empowerment. Our vision is to create a united and inclusive society where everyone can thrive. We want to empower individuals, help them become self-reliant, and build a brighter future for themselves and others. Aligarh Renaissance have achieved significant milestone along the way. It provided free healthcare service, supported underprivileged students with education, and offered career guidance. It has also assisted orphanage to ensure the well-being and education of children. Through workshops, seminar, and cultural event, Aligarh Renaissance has promoted knowledge, awareness, and community engagement. It has distributed books, worked toward reducing poverty, and protected the environment. Aligarh Renaissance is committed to its mission and vision to strive to create a better society for everyone. Dear participants, we encourage you to share your thoughts and questions in the end of the session. So today we gather with a shared purpose, that is to inspire, change, and empower women to unlock their full potential. So I'm very delighted to introduce our guest, Dr. Qudsiya Anjum, a highly accomplished individual who has made remarkable contribution in the area of women empowerment and social work. With her impressive educational qualification and extensive experience, Dr. Anjum has emerged as a champion for the cause of empowering women and creating positive change in society. As the principal of Hindu Kanya Inter College in Saharanpur, Dr. Anjum has played an important role in shaping the lives of countless students, fostering their educational growth and development. Additionally, she founded the Enlightened Women's Organization Parcham Saharanpur in 1999, which has been dedicated to supporting and uplifting women in various capacities. Her work in family counseling center at the police line in Saharanpur further exemplifies her commitment to helping families in need. Dr. Anjum's exceptional effort have gathered recognition and appreciation from esteemed organizations and institutions. She has received special awards and certificates from Nagar Shanti Samiti Saharanpur, Lions Club Saharanpur, Bharat Vikas Parishad, and CSS University Meerut for her outstanding contribution in the social sector. Her active involvement in committee addressing women's welfare
consumer dispute resolution, and promotion of Urdu language showcase her commitment to creating a better society. We feel privileged to have you, ma'am, here as our distinguished guest today. Your presence will undoubtedly enrich this session as we are looking forward to gain valuable insight and inspiration from your vast knowledge and experience. Please, ma'am, do enlighten us with your knowledge and experience. थैंक यू। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस मैम। अच्छा, ओके। तो पहले तो मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करूंगी कि आप लोगों ने मुझे आज इनवाइट किया है, और मुझे बहुत खुशी है कि अलीगढ़ के जो बच्चे हैं, क्योंकि अलीगढ़ से तो हमेशा ताल्लुक रहता है, दिल से ताल्लुक होता है, तो आप लोग ये काम कर रहे हैं। मैंने अभी ब्रोशर देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई। और मुझे जो आज टॉपिक मिले वो विमेन एम्पावरमेंट, लीडरशिप, कैरियर एडवांसमेंट, एडवोकेसी एंड एक्टिविज्म, ये टॉपिक मुझे अपना ख्यालात का इजहार करने के लिए मुझे बताया गया था। वुमेन एम्पावरमेंट जो है एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, लेकिन हम शुरू करते हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या दिया। तो हम लोग बराबर हैं, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग बराबर हैं, इक्विवेलेंट टू मैन। और बस यही है कि हमें फिर भी फाइट करना पड़ता है डिग्निटी की, इक्वलिटी और रिप्रेजेंटेशन के लिए, और इंडिपेंडेंट डिसीजन के लिए अभी भी हम लोगों को फाइट करना होता है या आवाज उठानी होती है। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वलिटी भी दी गई, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट दिए गए। ठीक, ना तो हम लोग डिस्क्रिमिनेट किए जा सकते हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स, आर्टिकल 15 के तहत, और इक्वल प्रोटेक्शन अंडर द लॉ आर्टिकल 14 के तहत भी हम लोगों को ड्यू मिला हुआ है, रिकॉग्निशन। लेकिन जो जहां तक हमारी विमेन एम्पावरमेंट की बात है या लड़कियों के एम्पावरमेंट की बात है, उसमें सबसे पहले ये जरूरी है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज दोनों को दी जाए, क्योंकि जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है इंडिया की, उसमें लड़के को ज्यादा अहमियत दी जाती है, लड़कियों को कम। हालांकि अभी सिनेरियो थोड़ा चेंज हो रहा है और काफी लड़कियां पढ़ रही हैं, अच्छे अच्छे एग्जाम्स क्वालिफाई कर रही हैं, लेकिन विमेन एम्पावरमेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है एजुकेशन। और जब हम लोग सर्वे करते हैं या स्टडीज देखते हैं तो हमें लगता है कि काफी उन लोगों को अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती हैं और ड्रॉप आउट बहुत ज्यादा होता है एजुकेशन में। उनकी जो एजुकेशन सबसे पहले जरूरी है उनके लिए, और इक्वल अपॉर्चुनिटीज जरूरी हैं उनके एम्पावरमेंट के लिए। उनकी लाइफ स्किल्स, अगर बहुत सी लड़कियां नहीं पढ़ पाती लेकिन वो बहुत टैलेंटेड होती हैं, उनमें कोई ना कोई हुनर होता है, तो उन लाइफ स्किल्स को कैसे एक्सप्लोर किया जाए, उनको कैसे लाइफ स्किल्स के जरिए वो अपनी लाइवलीहुड की तरफ जा सकती है, अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है, इस पे काम होने की जरूरत होती है। उसके अलावा उनको लाइवलीहुड ट्रेनिंग के जरिए हम उनको एम्पावर कर सकते हैं, और ऐसा बहुत सारे कोर्सेज, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, बहुत सारे एनजीओज इस फील्ड में काम कर रहे हैं कि जो उनको एम्पावर कर रहे हैं, वो अपने पैरों पे खड़े होकर कुछ ना कुछ लाइवलीहुड कर रही हैं, और अपने बच्चों की भी अच्छे से एजुकेशन या अपनी एजुकेशन के लिए भी वो कुछ पैसे अवेयरनेस और सेंसिटिविटी लाएं समाज में। क्योंकि ये जो सोसाइटी है ये लड़कियों के लिए और औरतों के लिए उतना सेंसिटिव नहीं है आज भी, तो अवेयरनेस और सेंसिटिविटी भी जरूरी है विमेन एम्पावरमेंट के लिए। उसको डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी में भी शामिल किया जाए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और जेंडर इक्वालिटी या जेंडर जस्टिस की बात हम लोग करते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। जब प्रैक्टिकली जब हम देखते हैं तो वो बहुत सारी चीजों से उसको महरूम कर दिया जाता है, और बहुत सारी चीजें उसे नहीं मिल पाती। इवन फैमिली में भी उसको बहुत सारी चीजों के लिए फाइट करना पड़ता है या अपने हक की आवाज उठानी पड़ती है। जैसे इनहेरिटेंस में मैं एग्जांपल दूंगी, या इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस में मान लीजिए इक्वल वेजेस नहीं मिलते हैं, उसी काम के लिए औरत को कम मिल रहा है या लड़की को कम मिल रहा है, और जो पुरुष है या बॉय है या मैन है उसको ज्यादा इक्वल
उसको ज्यादा पेमेंट मिलता है। हेल्थ और वेलबींग में भी देखा गया है कि वो बहुत पीछे रह जाती हैं और उनको वो सब नहीं मिल पाता, न्यूट्रिशन के नहीं मिल पाता जो उनको मिलना चाहिए, हाइजीन है वो नहीं हो पाता है। और जहां तक बात है कि हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है, उसको एजुकेशन पॉलिसी शुड टारगेट यंग मैन एंड बॉयज टू चेंज देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स गर्ल्स एंड वुमेन। अगर ये हो जाए कि बॉयज और मेंस का एटीट्यूड चेंज हो जाए तो बहुत हद तक जो इसके आउटकम है वो पॉजिटिव होंगे। उसके अलावा स्किलिंग एंड माइक्रो फाइनेंसिंग जो है वो भी स्टेबल करेगी और वो डिपेंडेंट नहीं रहेगी दूसरे पर। ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस रेजिंग एक्टिविटीज टू मोर वुमेन, टू बिल्डिंग स्किल्स, प्रोवाइडिंग कैपेसिटी एंड मेंटोरशिप अपॉर्चुनिटीज, ये भी जरूरी है। फिर इसके अलावा आजकल मैं देख रही हूँ कि डिजिटल लिटरेसी भी एक इम्पॉर्टेंट फील्ड है वुमेन के लिए, जिसमें कि लड़कियां और औरतें बहुत काम कर रही हैं और काफी सक्सेसफुल हो रही हैं। अगर डिजिटल लिटरेसी की ट्रेनिंग दी जाए तो उसमें भी बहुत स्कोप है और वो एम्पावर हो सकती हैं। सेंसिटाइजेशन मैंने अभी ये टॉपिक अभी डिस्कस ही किया है। उसके अलावा ट्रेनिंग वुमेन इन नॉन ट्रेडिशनल स्किल्स विद मार्केट डिमांड, जो भी मार्केट डिमांड है अगर हम उसमें औरतों को लड़कियों को ट्रेन करते हैं तो वो भी एक एम्पावरमेंट की तरफ एक कदम है। जहां तक की बात है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की, तो इसमें तो हम लोग देखते हैं एक रिपोर्ट है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन IPU एंड यूनियन वुमेन, इंडिया रैंक्स 148 आउट ऑफ 193 कंट्रीज। तो ये बहुत ही दुख की बात है कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, जैसे अभी हमारे यहाँ, मैं एग्जांपल दूंगी, हमारे यहाँ नगर निगम के चुनाव हुए तो उसमें कुछ रिप्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन लड़कियों का और महिलाओं का था, लेकिन जो बोर्ड थे या जो भी पब्लिसिटी हो रही थी वो एक चेहरा जो था उनके या तो पति का था या उनके भाइयों का था जो उनके लिए कन्वेसिंग कर रहे थे। और अभी भी जो मीटिंग हुई नगर निगम की, जो इंट्रोडक्टरी मीटिंग हुई, तो उसमें उनके भाई और पति ही गए और वो जो थी वो उन्होंने कोई लीड रोल नहीं किया। तो लीडरशिप तो तभी आएगी, क्योंकि लीडरशिप भी एक टॉपिक है। लीडरशिप कैसे आएगी? जब तक कि घर से उसको एक माहौल नहीं दिया जाएगा या मैन और जो बॉयज हैं उनके एटीट्यूड में या उनके विजन में इक्वालिटी का एटीट्यूड नहीं आएगा, तब तक के तो वो किसी भी जगह पार्टिसिपेशन नहीं कर सकती। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन तो दूर की बात है। और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में जैसे कि भाई अभी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो टिकट देते देते टाइम तो कभी नहीं देखती कि अगर कोई औरत काबिल है या बहुत डिजर्विंग है। उसमें भी कास्ट सिस्टम हावी हो जाता है या फैमिली हावी हो जाती है। फैमिली में अगर मान लीजिए कोई लीडर है तो फिर उसकी अगर वो सीट रिजर्व है तो फिर उसकी वाइफ खड़ी होगी। और जो बहुत सारी जो महिलाएं काम कर रही हैं, जिन्होंने एक अपना इनका उनका एक अपना विजन है, एजुकेशन है, एक उनकी कैपेबिलिटीज हैं, उनकी एबिलिटीज हैं, वो सब एक तरफ रह जाती हैं। वहां पे भी वो ही डोमिनेट करता है। तो विजन होना चाहिए लीडरशिप के लिए, फिर उसकी एग्जीक्यूशन होनी चाहिए, फिर ट्रेनिंग होनी चाहिए, कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए, अवेयरनेस रेजिंग एक्टिविटीज होनी चाहिए, तब वुमेन के अंदर लीडरशिप भी आएगी और उनकी स्किल्स डेवलप होंगी। और जहां तक के इसी में वुमेन जो हमारी लीडरशिप है वो तभी डेवलप हो सकती है जब एडवोकेसी भी हो। एडवोकेसी किस लिए हो? सोशल चेंज के लिए या बिहेवियरल चेंज के लिए। जैसे मैंने अभी बताया कि जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है या पैट्रियार्कल सोसाइटी जो है वो वुमेन को एक लीड पोजीशन में आने से रोकती है, ये बैरियर है उसके लिए कि वो औरत है। अब जब तक के सोसाइटी का माइंडसेट चेंज नहीं होगा या जो घर में लोग हैं उनका माइंडसेट नहीं चेंज होगा, खास तौर से मेल्स का, तब तक के सोसाइटी में चेंज नहीं आ पाएगा। भले से चाहे उसको लीगल राइट्स मिले हुए हों, हम कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वालिटी की बात कर रहे हों, लेकिन
तब तक उसके कोई भी सोसाइटी में चेंज लाने के लिए सबसे पहले चैरिटी बिगिंस एट होम, तो वो घर से शुरुआत होगी तभी हो पाएगा। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट भी तभी आएगा। अब जो बात है वो थी हमारी कैरियर एडवांसमेंट की, कि स्टूडेंट्स को हम कैसे अच्छे उसके लिए कोर्सेज के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो जरूरी है वो ये है कि अगर किसी भी जो जैसे देखा गया है कि बच्चे शुरू से नहीं सीरियस होते, या उनके पेरेंट्स नहीं सोचते कि हमें किस फील्ड में इनको लेके जाना है, वो अपनी मर्जी से 10th करेंगे, इंटर करेंगे, बीए कर लेंगे, तब जाके सोचेंगे कि अब हमें क्या करना है। तो अगर वो इतने आगे जाके सोचेंगे तो वो फिर कुछ भी नहीं बन पाएंगे। उनका बहुत शुरू से ही पेरेंट्स को एक ऐसी सोच के साथ बच्चे को लेके चलने की जरूरत है कि हाई हाई ग्रेड जो इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उनमें उनका दाखला हो सके, और वक्त पे उनको कैरियर काउंसलिंग हो सके, उनकी रहनुमाई हो सके। हायर ग्रेड जो इंस्टीट्यूशन में दाखला तभी हो पाएगा कि जब पेरेंट्स शुरू से ही बच्चे की थ्रो स्टाफ या थ्रो अच्छे गुड टीचर्स के जरिए उसकी काउंसलिंग कराएंगे। या जैसे आजकल बहुत से कैरियर काउंसलिंग सेंटर हैं, एनजीओज भी काम कर रहे हैं, हम लोग भी काम कर रहे हैं इस पे, आप लोग भी कर रहे हैं कैरियर काउंसलिंग का। तो वो बच्चे को अच्छे रहनुमाई के लिए कि आपको कौन से कोर्स में जाना है, तो सबसे पहले तो उसका इंटरेस्ट देखा जाएगा कि उसका इंटरेस्ट साइंस में है, आर्ट्स में है, कॉमर्स में है, वो किस चीज में जाना चाहता है। फिर उसी लेवल पे उसका एडमिशन कराया जाएगा, या उसी तरह उसको लेके चला जाएगा। और अभी कितने ज्यादा कोर्सेज हो गए हैं, पहले तो लोग सिर्फ इंजीनियरिंग में या एमबीबीएस में जाने की सोचते थे, लेकिन अब तो इतना वास्ट फील्ड है। यूपीएससी है, बीपीएससी है, बैंकिंग है, रेलवे है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, मल्टीमीडिया है, एनिमेशन है, फॉरेन लैंग्वेज है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, एलएलबी है, बीबीए है, इवेंट मैनेजमेंट, मतलब कितने सारे कोर्सेज हैं। अगर लेकिन मुश्किल ये है कि बच्चों को मालूम नहीं है, तो वो कैरियर काउंसलिंग के थ्रू, एनजीओ का एक बहुत बड़ा रोल है। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोग करें, हम लोग अपने बैनर से, कंबाइंड बैनर से, ज्वाइंट बैनर से इन चीजों को किया जा सकता है, और बहुत वास्ट और बहुत दूर तक हम लोग अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि उसकी जहन साजी हो बच्चे की। शुरू से स्टूडेंट की जहन साजी करना जरूरी है कि आपको कौन से कोर्स में इंटरेस्ट है, आप किस कोर्स में जाएंगे, कहाँ जाएंगे। अगर उसको सिलेबस की गहरी समझ हो गई तो फिर तो वो उसको उसको फॉर्म भरवाने में मदद करेंगे। ये भी अभी बहुत सारे हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं सहारनपुर में कि ये, और हो भी रहा है, काफी लोग कर रहे हैं। अलीगढ़ के लिए एग्जाम दिलवाते हैं, बहुत से कोचिंग सेंटर हैं, जामिया के लिए एग्जाम दिलवा रहे हैं, और फॉर्म फिल करने में भी उनकी मदद की जाए। नेशनल लेवल का एग्जाम है यूपीएससी, उसके लिए बहुत मेहनत की जरूरत होती है, कितनी सारी, इतना ज्यादा टाइम चाहिए होता है उसको। बच्चे को बताया जाए कि आपको इतना टाइम डिवोट करना पड़ेगा, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे आप इस कोर्स की स्टडी करोगे तभी आप इसमें कामयाब कर पाओगे या क्वालिफाई कर पाओगे। तो ये सारा स्कोप देखा जाएगा कि किस में स्कोप लेना चाह रहा है बच्चा, कौन सा ज्यादा उसके लिए बेनिफिशियल फील्ड है। और कुछ सक्सेसफुल लोगों के एग्जाम्पल भी बच्चों को दिए जाने चाहिए। जैसे बिल गेट्स हैं, कैसे कामयाब हुए, को फाइंडर है माइक्रोसॉफ्ट के, कैसे वो इतनी बड़ी पोजीशन पे चले गए कि आज पूरी दुनिया उनका नाम जानती है। वारेन बफेट हैं, वो कैसे इतने बड़े बन गए, कैसे वो इतनी ऊंचाई पे पहुंचे। ओबामा जो थे, ब्लैक प्रेसिडेंट थे, जबकि ब्लैक्स का जो है वो दुनिया में, जाहिर सी बात है कि डिस्क्रिमिनेशन तो है ही, जैसे विमेन के साथ होता है डिस्क्रिमिनेशन, ऐसे उनके साथ भी हुआ होगा। लेकिन उनकी एक विल थी ना कि वो एक प्रेसिडेंट बन गए अमेरिका के। थॉमस एल्वा एडिसन थे, उन्होंने 10,000 बार बल्ब बनाने की कोशिश की, और 10,000 बार वो फेल हो गए, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, और फिर उसके बाद वो बल्ब बनाया उन्होंने। अब उन्होंने लोगों ने उनसे पूछा कि भाई जब आप इतना अनसक्सेसफुल हुए और आप इतनी बार आपको कामयाबी नहीं मिली, तो आप छोड़ देते ना इसको। उन्होंने कहा नहीं,
मैं ये मानता हूँ कि ये मैंने 10,000 बार, मुझे ये पता चला कि 10,000 बार बल्ब कैसे नहीं बनाया जा सकता, और एक एक कोशिश वो कौन सी है जिससे मैं बल्ब बनाने में कामयाब हुआ। तो ये होता है डेडिकेशन। और डेडिकेशन अगर हमारे अंदर होगा, स्टूडेंट्स में होगा, तो वो 100% कामयाबी हासिल करेंगे। और उनको एक काउंसलिंग की, एक माहौल की जरूरत होती है, जो हम आप एनजीओ लेवल के एकेडमिक लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो थे, उन्होंने कहा था कि हमें अपने आप को पहचानना ही नहीं होता, अपने आप को गढ़ना भी होता है कि हमारे शौक क्या हैं। सबसे पहले हमें ये पता चले कि हमारे शौक क्या हैं और हम क्या बनना चाहते हैं, तो हम उसी को फोकस करें और उसी को बेहतराई की तरफ ले जाएं और पुरुम्मीद रहें। तो जैसे खलील जिब्रान ने कहा था कि जिंदगी का मकसद जो होता है, इसके भेदों को समझना होता है, और दीवानगी जो होता है वो इसका वाहिद रास्ता होता है। यानी कि अगर हमारे अंदर किसी चीज को पाने की दीवानगी है, अपनी मंजिल को पाने की दीवानगी है, तो हम 100% उसको हासिल करके रहेंगे। और आज जो है वो स्टूडेंट्स को इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, हम लोगों के जमाने में तो ये सब अपॉर्चुनिटीज थी नहीं, इतने प्लेटफॉर्म नहीं थे। आज के स्टूडेंट्स बहुत खुशकिस्मत हैं कि उनके पास इतने सारे प्लेटफॉर्म हैं। वो एनजीओ की मदद ले सकते हैं, वो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन की मदद ले सकते हैं, काउंसलिंग सेंटर की मदद ले सकते हैं, और अपने आप को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। अब चौथा टॉपिक जो था वो एडवोकेसी और एक्टिविज्म था। जो एडवोकेसी क्या है कि हम किसी चीज के को अगर हम गलत देख रहे हैं, उस चीज को हम महसूस कर रहे हैं, और उसको हम गलत चीज को देखते हुए भी ना बोलें, और सही चीज के लिए हम आवाज उठाएं, यही हमारा एक्टिविज्म है। जैसे आपने देखा होगा कि अमेरिका में चला था ब्लैक लाइफ मैटर्स था, या मी टू कैंपेन चला था, जिन औरतों का एक्सप्लॉयटेशन हुआ था, जिन वुमेन्स के साथ ज्यादती हुई थी, उन्होंने मी टू कैंपेन चलाया था और उसमें वो सक्सेसफुल हुई थी। ऐसे ही बहुत सारी चीजों के लिए कैंपेन चलते हैं, एनवायरमेंट के लिए चलता है, ब्लैक्स के लिए चलता है, विमेन्स के लिए चलता है। तो ये सब कैंपेन के थ्रू, एडवोकेसी के थ्रू किसी भी उन लोगों के लिए आवाज उठाई जा सकती है, एक प्लेटफॉर्म बना करके, जो जिनके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, जिनको उनका हक नहीं मिल रहा है, उनके राइट्स नहीं मिल रहे हैं। तो ये हमारे, लेकिन यही चीजें, एडवोकेसी जो होती है वो बदलाव लाती है। सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल चेंजेस जो होते हैं वो इसी के जरिए होते हैं। जब हम लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं और एक प्लेटफॉर्म पे हम इकट्ठा होते हैं, यूनाइट होते हैं, किसी चीज के लिए फाइट होते हैं, लेकिन वो कॉज अच्छा कॉज होना चाहिए। उस अच्छे कॉज के लिए अगर हम लोग कोशिश करते हैं और उसके लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, मोबिलाइज करते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं, तो उसमें हम लोग कामयाब होंगे, या सभी लोग जो भी कोशिश करते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं छोटे छोटे पैमाने पे, क्योंकि अब कैंपेन चलाने के लिए भी बहुत मेहनत की जरूरत होती है, और उसके लिए भी बहुत लोग चाहिए होते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने अंदर के एक्टिविज्म को जिंदा करना चाहिए कि मैं क्या कर सकती हूँ। नहीं, ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं क्या कर सकती हूँ या हम क्या कर सकते हैं। हम बहुत कुछ कर सकते हैं, और जैसे मैंने अभी बताया कि चैरिटी बिगिंस एट होम। हम जब घर से इसकी शुरुआत करेंगे, पहले जो हम घर में अगर कोई बात गलत हो रही है, पहले उसके लिए आवाज उठाइए। फिर जैसे मैं लड़कियों से कहती हूँ कि अगर वो पेरेंट्स तुम्हें पढ़ने के लिए रोकते हैं, तो तुम अपनी आवाज उठाओ, तुम कहो नहीं हम पढ़ेंगे। पढ़ना कोई गुनाह नहीं है, पढ़ना हम पढ़ेंगे, हम एजुकेशन हासिल करेंगे। अगर तुम पहले ही हथियार डाल दोगे तो फिर कोई दूसरा क्या आवाज उठाएगा। अगर वो लड़की आवाज उठाती है अपने लिए और कहती है कि नहीं मैं पढ़ूंगी, तो हम लोग भी फिर उसके पेरेंट्स की काउंसलिंग करते हैं, और हम उसके घर भी विजिट करते हैं, उसके घर जाते हैं, उसके पेरेंट्स को समझाते हैं। वो अगर इकोनॉमिक उसका वास्ता देते हैं कि भाई नहीं है, हमारे तो हालात नहीं है, चलो भाई हम लोग सब मिलके फीस दे देंगे, कोई बात नहीं, आप इसके लिए परेशान नहीं हो, हम लोग उसकी फीस भी दे देते हैं, कुछ लोग मिल करके उस लड़की की, उस बच्चे की। तो वो लोग, बच्चा अगर अच्छा है तो बहुत लोग मदद के लिए राजी हो जाते हैं। सिर्फ हमें इनिशिएटिव लेना होता है कि हम किस तरह इनिशिएटिव लेके और लोगों को मोबिलाइज करके उस अच्छे कॉज के लिए एक बच्चे की पढ़ाई करा सकते हैं, एक बच्चे को हम एक अच्छे मकाम पे पहुंचा सकते हैं।
तो हम क्या कर सकते हैं एज ए इंडिविजुअल कि उसको एक स्कूल में एनरोल करा सकते हैं आप लोग, बुक्स डोनेट कर सकते हैं उसको, अपनी गरीब बच्चे को क्लॉथ्स डोनेट कर सकते हैं, अपने तौर पे फ्री ट्यूशन दे सकते हैं। अगर उस बच्चे के पास ट्यूशन के लिए पैसे नहीं है, आप उसको खुद भी दे सकते हो ट्यूशन। अवेयरनेस प्रोग्राम चला सकते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने एक सर्वे कराया कि कितने बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त एडमिशन हो रहे हैं 1 से लेकर के और 11 तक एडमिशन हो रहे हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि एक सर्वे कराया जाए। तो कुछ कॉलोनीज में तो बहुत ही बुरा हाल है, बच्चों को स्कूल ही नहीं भेजते हैं, उनको चाइल्ड लेबर में लगा रखा है। लड़कियां घर में काम करती हैं छोटे छोटे, और बच्चे जो हैं वो कुछ लकड़ी का काम करते हैं, क्योंकि सहारनपुर में वुड कार्विंग का काम होता है, तो वो पॉलिशिंग का काम कर रहे हैं। या वो लोग जो हैं चाय के ढाबों पे, या कपड़े की, यहाँ पे एक कपड़े का बहुत बड़ा मार्केट है, हौजरी का बहुत बड़ा मार्केट है, तो उसमें बच्चों को लगाया हुआ है। तो माँ बाप सोचते हैं कि ये 200 रुपए 150 रुपए रोज ले आता है, अगर हम इसे पढ़ाएंगे तो हमारे तो वो पैसे भी जाएंगे। तो उनके, और बहुत सी लड़कियां ऐसी थी जिनको हमने सोचा कि हम लोग इनको गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला करा सकते हैं, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ेंगी। तो उनके आधार तक नहीं बने हुए थे, और वो लड़कियां 15-15 साल की, 16 साल की हो गई हैं। अब बताइए कि जब उनका आधार नहीं है और उनका कोई आइडेंटिटी नहीं है, उनको हम कैसे स्कूल में एडमिट कराएंगे? तो शुरू से ही अगर एक सर्वे हो जाए इन कॉलोनीज का, और उनको अवेयर कर दिया जाए कि ये आप लोगों को ये डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर रखने हैं, तो बहुत कुछ हो सकता है। तो अब हम लोगों को ये सारे छोटे छोटे इश्यूज अगर हम लोग लेके चलेंगे, और छोटे छोटे भी पैमाने पे हम लोग काम कर सकते हैं, और जरूरी नहीं है कि बहुत बड़े लेवल पे या बहुत बड़े एनजीओ से जुड़ के आप लोग काम करें। अगर ये सब काम करेंगे तो एडवोकेसी और एक्टिविज्म आएगा, और आप लोग अपने आप ही फिर जब इतना कुछ सीख लेंगे तो आप अपने आप ही बड़े लेवल पे भी काम करने के काबिल होंगे। बस मैं एक शेर के साथ अपनी बात खत्म करूंगी। राहत इंदौरी का एक शेर है, उंगलियां यूं ना सब पर उठाया करो, खर्च करने से पहले कमाया करो, जिंदगी क्या है खुद ही समझ जाओगे, बारिशों में पतंगे उड़ाया करो। थैंक्स। मैं आप लोगों को थैंक्स बोलूंगी कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया बोलने का, और खास तौर से ये अलीगढ़ इनासा जो बहुत अच्छा काम कर रहा है। और मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं। मैं आप लोगों को मुबारकबाद देती हूँ। इसी के साथ मैं आप लोगों से हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस मैम, आ रही है जी। इसमें मैं एक बात और कहना भूल गई थी कि कुछ स्कीम्स भी चल रही हैं जो कि लोगों को पता नहीं होता है। उन स्कीम्स को भी लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है। जैसे कि 1 to 8 फ्री एजुकेशन है गवर्नमेंट की तरफ से, और लोग कह देते हैं कि हम लोग के हालात नहीं है, तो 1 to 8 आप पढ़ाइए, कम से कम उतना तो पढ़ाओ। तो वो चीजें भी बहुत जरूरी हैं, और उसकी अवेयरनेस के लिए भी एक कैंपेन चलाने की जरूरत है, जो जो स्कीम्स वुमेन एम्पावरमेंट के लिए चल रही हैं। Yes, ma'am, I completely agree with this. And I think that nothing can limit yourself except your mentality. So, women should understand this and they should analyze themselves and work for their dream, ignoring all gender bias. And now, I would like to request participant that if they have any question, they can ask in. अगर किसी को कुछ पूछना है मैम से तो प्लीज आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं।
आई थिंक कि कोई क्वेश्चन नहीं है। अस्सलाम वालेकुम Yes, मैम। ma'am. मैम मेरा वालेकुम फजल इमाम अस्सलाम। नाम है और बहुत अच्छा लगा आपने इतना अच्छा लेक्चर दिया। वुमेन एम्पावरमेंट को मैम लोग बाग फेमिनिज्म से भी जोड़ने लगते हैं। जब फेमिनिज्म की बात आती है तो लोग बाग के गलत तस्वुर होता है कि वो लड़कियों के ही लिए हैं। हालांकि उनसे डेफिनेशन पूछी जाती है तब वो दोनों के लिए बताते हैं, लड़कियां हों या मर्द हों दोनों के लिए हैं। लेकिन पूछा बिल्कुल। जाता है कि नाम ऐसा क्यों रखा गया, तो बताते हैं जी। कि एवरीथिंग हैज अ जनरेटर एंड मदर इज द जनरेटर। तो इससे आप कैसे रिलेट करेंगी वुमेन एम्पावरमेंट को फेमिनिज्म से? देखिए, विमेन एम्पावरमेंट की बात इसलिए हुई क्योंकि जो हमारी सोसाइटी थी वो मर्दाना समाज, पैट्रियार्कल सोसाइटी समझ लीजिए या मेल डोमिनेटेड सोसाइटी समझ लीजिए। और क्योंकि औरतों को वो ड्यू रिकॉग्निशन नहीं मिल पाया जो उन्हें मिलना चाहिए था। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी थे, हालांकि इस्लाम ने भी इतने राइट्स दिए हैं मुस्लिम औरत को, और लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हुए, वो एग्जीक्यूट नहीं हुए। इसलिए ये कंसेप्ट आया। हालांकि जो काम हो रहे हैं वो जाहिर सी बात है कि अब सब लोग मिलके ही हम लोग सब मेल्स के साथ मिलके करते हैं ये काम। ऐसा तो नहीं है कि हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात का कोई हम अलग अलग कोई प्लेटफॉर्म बना के कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। सब लोग, और जिनकी मेंटेलिटी है कि वो चाहते हैं कि औरतों का मतलब ये नहीं है कि कोई फाइट करना है मेल से, बल्कि जो उसको राइट्स नहीं मिले हैं या उसको जो ड्यू रिकॉग्निशन नहीं मिला है वो देना है, ये है वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब। और जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उसे राइट दिए, जो इस्लाम ने उसे राइट्स दिए हैं, लेकिन ये नहीं है कि वो अपनी लिमिट से बाहर जाए, वो गलत है। फेमिनिज्म जो है वो अलग अलग तरीके से है। वो अलग है कि वो किस तरह डिफाइन कर रहा है। बहुत शुक्रिया मैम। जी। Anyone else? मैम ये किसी ने आलिया हसन है, उन्होंने ये कहा है कि मैम यू आर अ प्रिंसिपल ऑफ स्कूल एंड यू मस्ट हैव मैनी हर्डल इन योर जर्नी. I would like to appreciate it if you could share with us the hurdle you faced in your life and how overcome them. देखिए, जब काम करते हैं ना तो हर्डल्स तो बहुत आती हैं। कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती है जिंदगी में, और मुझे भी काफी टफ जो है वो मेरा स्ट्रगल रहा है। हालांकि मेरिट पे पहले मैं, यहाँ पे एक इंडस्ट्रियल मुस्लिम गर्ल्स इंटर कॉलेज है, पहले मैं वहाँ पॉलिटिकल साइंस के लेक्चरर हुई। फिर मैंने ऑल यूपी आयोग, जो हमारा कमीशन है इलाहाबाद का, वहाँ मैंने ऑल यूपी एग्जाम दिया इसका प्रिंसिपल का, और फिर मेरा ऑल यूपी में सिलेक्शन हुआ। तो तब मुझे यहाँ पे ज्वाइन किया है मैंने। तो लेकिन उसके लिए परेशानियां तो जाहिर सी बात है कि बहुत आती हैं, और एक मुस्लिम बीइंग ए मुस्लिम लेडी भी थोड़ी दिक्कत आती ही है। लेकिन उन सब चीजों को फेस करना पड़ता है और उन चीजों से निकलना भी पड़ता है। पहले लोगों ने बहुत ऑब्जेक्शन भी किए, सोशल वर्क पे भी ऑब्जेक्शन किए, नौकरी पे भी ऑब्जेक्शन हुए, और चीजों पे भी, घर से निकलने पे भी ऑब्जेक्शन हुए। लेकिन जो आदमी अगर सही राह पे चल रहा है और उसका सही विजन है और वो सही चीज के लिए निकल रहा है और सही काम कर रहा है, तो फिर उसे डरने की जरूरत नहीं है। ये एक चीज है जिंदगी में कि जो हमें आगे बढ़ने के लिए हमें इंस्पायर करती है कि हम क्योंकि सही हैं तो हमें क्या डरना। लोग तो क्रिटिसाइज करेंगे ही ना, वो तो कहेंगे ही कि भाई ये निकल गई हैं औरतें। अब जैसे मैं अब कॉलेज जाती थी, उसके बाद फिर मुझे सोशल वर्क के लिए भी निकलना होता है क्योंकि ये फील्ड वर्क होता है। तो लोग कहते थे कि भाई ये तो घर में ही नहीं बैठती, ये तो अभी कॉलेज से आई हैं, अब थोड़ी देर में ये फील्ड में जा रही हैं, तो इनके पास घर में कोई काम नहीं है। हालांकि मैं एक राइटर भी हूँ और मेरे काफी चीजें जो हैं वो पब्लिश होती रहती हैं। अभी मेरा राष्ट्रीय सहारा में भी है, खुद शिनासी पे एक मजमून आया है, एक अफसाना भी आया है। तो मतलब मुझे घर में भी टाइम चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन क्योंकि वो मेरा पैशन है सोशल वर्क, तो मुझे जाना ही पड़ेगा। अब जैसे सर्वे हो रहा है, हम लोग
बहुत दिक्कतें आ रही हैं। मतलब लोग जो हैं वो हमें, बहुत से लोग हमसे बात नहीं करते, वो सोचते हैं पता नहीं ये कहाँ के एजेंट आ गए हैं, वो कह देते हैं नहीं भाई आप घर में नहीं एंट्री करेंगे, पता नहीं गवर्नमेंट की कोई आ गई है ये। तो वो हमें घर में एंट्री नहीं देते, वो हमसे अच्छी तरह बात नहीं करते। लेकिन हमने नहीं छोड़ा ना फील्ड में जाना, हमने उन लोगों को टारगेट किया जो हमसे बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं अगर हम 20 बच्चे 30 ही बच्चे निकाल रहे हैं फील्ड से और उन लड़कों को हम एडमिशन करा दें और उनको एक अच्छा माहौल दे दें, तो ये हमारी सक्सेस है। छोटी छोटी सक्सेस है, हम बहुत बड़ी सक्सेस की उम्मीद नहीं करते जिंदगी में कि हम बहुत बड़े पैमाने पे कोई बहुत बड़ी कोई वो बन जाएंगे। लेकिन उन छोटी छोटी चीजों से जब कुछ अच्छा रिजल्ट आता है तो बहुत खुशी होती है कि ये बच्चा हमारी वजह से पढ़ पाया है, या ये लड़की हमारी वजह से पढ़ पाई है, या ये लड़की हमारी वजह से रेस्क्यू हुई है। मैंने 2 लड़कियों को रेस्क्यू कराया, उनके हस्बैंड बहुत ज्यादा जुल्म करते थे, बहुत परेशान करते थे और उनको घर में कैद करके रखा हुआ था। फिर हम लोगों ने हिम्मत करी और हम लोग गए उनको, और आज एक लड़की जो है वो बहुत अच्छी वकील बन गई है, वो कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही है। दूसरी लड़की जो है उसकी भी बहुत अच्छी जॉब में चली गई है। तो मतलब ये कोशिशों से होता है, और पहले ये देखना पड़ता है कि वो झूठ तो नहीं बोल रहे, क्योंकि दोनों से बात करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ लड़की से बात कर लेंगे और लड़के से बात नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता है। बात तो दोनों से करनी पड़ती है और फिर उसके ऊपर फिर सोचना पड़ता है कि ये कौन सही होगा या कौन गलत होगा, और लोगों से भी इंक्वायरी करनी पड़ती है, काफी कुछ करना पड़ता है। मतलब कोई भी चीज आसान नहीं है, डिफिकल्टी तो बहुत आती है और बहुत परेशानियां आती हैं, लेकिन उनको फेस करना पड़ता है। Yes, ma'am. Ma'am, Tabassum is asking that, is this similar saying like women empowerment smashing the patriarchal system? नहीं, ऐसा तो नहीं है। ये उसको हम एक तरह के पैट्रियार्कल सिस्टम को हम चैलेंज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम वुमेन एम्पावरमेंट की जब बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो हमें हमारे हक हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हक हैं वो हमें दे दो, जो हमारे इस्लाम में हक हैं वो हमें दे दो। क्योंकि आप देख रहे हैं कि क्या इनहेरिटेंस में, अगर मैं इस्लाम की बात करूं तो क्या इनहेरिटेंस में औरतों को, लड़कियों को उनका हक मिल रहा है? लड़के को 2 हिस्से मिलते हैं, लड़की को 1 हिस्सा मिलता है, क्या उनको मिल रहा है? लोग दे रहे हैं उनको? क्या लड़के को और लड़की को बराबर पढ़ा रहे हैं? अब तो बहुत, खैर एजुकेशन बहुत अच्छी हो गई। तो अभी मेरे ही सामने की एग्जांपल है कि मेरे सामने एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है, तो वो भाई तो वहां पढ़ रहा है और लड़का जो है, लड़की जो है वो हिंदी मीडियम में बोर्ड में पढ़ रही है। तो ये डिस्पैरिटी तो चल रही है ना। तो अगर वो लड़की अगर कह दे इस बात को तो क्या गलत है? समाज की सोच को ही तो बदलना है, उस सोच को बदलना है जो समझती है कि मर्द सुपीरियर है और औरत नहीं है। जब 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 इस्लाम भी कह रहा है कि बोथ आर इक्वल, कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है बोथ आर इक्वल, तो फिर इसमें कोई हम अपनी थोड़ी चला रहे हैं बात। हम तो ये कह रहे हैं कि हमें हमारा वो हक दे दो जो हमें इस्लाम दे रहा है, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है। Okay, ma'am. Thank you. Ma'am, now I would like to call Mariam Fatima for vote of thanks. Okay. Assalamu alaikum. Dr. Qudsi Anjum, on behalf of Aligarh Renaissance, I, Mariam Fatima, wanted to take a moment to express my sincere gratitude for your incredible contribution as a speaker at our Women's Empowerment event. Your insightful and inspiring words left a lasting impact on all attendees, and we are immensely grateful for your presence. Your passion for empowering women and your deep understanding of the challenges they face were evident throughout your speech. Your ability to convey such a powerful message with clarity and empathy was truly remarkable. I would like to extend my deepest gratitude for your exceptional contribution to our Women's Empowerment event. Your passion, knowledge have left a deep mark on the hearts and minds of those who were fortunate enough to hear you speak. Thank you once again for your invaluable support and for sharing your expertise with us. We hope to have the privilege of welcoming you back in the future and continuing to work together to empower women and create a more inclusive society.
Thank you. Further, Aligarh I Women. encourage all the participants to participate in our upcoming events and programs, which will help you build up your knowledge and career understanding in various fields. And lastly, I would like to notify that all the participants will get their certificates of participation, hopefully by tomorrow or day after tomorrow. With this, I would like to end our session with a quote. As Okay. women, we have to start appreciating our own worth and each other's worth. Seek out strong women to befriend, to align yourself with, to learn from, to collaborate with, to inspire by, and to support, and to be enlightened by. This was all in our today's session. Thank you so much, Dr. Kutsi Anjum ma'am. And thank you all the attendees for attending our session. It was really wonderful to welcome you here. Thank you very much. The session is over. Now you all can leave. Thank you so much, everyone. Thank you, ma'am.